वासियों का बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन। जब हमने इस कैंपेन की शुरुआत की तो हमारा मकसद था लेट अस ब्रेक द टायरनी ऑफ साइलेंस। चुप्पी तोड़ें लोग, और देखते देखते न केवल माता पिता और परिवार के लोग बल्कि बाल यौन शोषण के शिकार बच्चे खुद आगे आने लगे। We started with a tiny spark and within no time it was converted into a nationwide movement. आप सबके सहयोग और भागीदारी का नतीजा ये हुआ कि we were able to give mental health support, legal support and rehabilitation for more than 15,000 survivors of child sexual abuse. आपने जो ताकत दी हमें, जो उत्साह दिया, उसके परिणाम स्वरूप हमने एक नई चुनौती स्वीकार करी। We have accepted a new challenge and that is to end child marriages. बाल विवाह कानूनी अपराध होते हुए भी जिंदगी का सामान्य हिस्सा बना हुआ था, एक परंपरा के तौर पर यह चला आ रहा था। हमारे आह्वान पर चंद दिनों के अंदर 76,000 से ज्यादा बेटियों ने, बहनों ने, माओं ने आगे आकर आवाज दी कि हम आगे बढ़ के इस बुराई का अंत करेंगे। इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना है, तब तक बढ़ाना है जब तक कि भारत में एक एक बच्चा बाल विवाह से मुक्त ना हो जाए। A clarion call from Nobel laureate Kailash Satyarthi on an age-old social evil that is still prevalent and more rampant than we can even imagine. The latest National Family Health Survey shows that every fourth woman surveyed in the age group of 20 to 24 was married before she turned 18. Shri Kailash Satyarthi will be joining us this evening in studio. लेकिन इससे पहले गार्गी के हम बाल विवाह के अपराध और अपराधियों के बारे में कैलाश जी से बात करें। आपको ले चलते हैं एक साल पहले, पिछले साल एनडीटीवी और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की मुहिम जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड की शुरुआत बाल यौन शोषण या फिर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मुद्दे से हुई थी। पिछले साल हमारा मकसद था बाल यौन शोषण के शिकार हुए बच्चों को कानूनी और मानसिक सहायता दिलवाना। देखिए पिछले एक साल की ये झलक। Do you know that 3 children are raped and 5 are sexually abused every hour? But their fight for justice goes on forever, tormenting them throughout their life. This is a national emergency and India's children desperately need our help. Child sexual abuse and rape is a national crisis for India. With justice that is being delivered to every victim, it will also prevent crime for many other hundreds. Hence, we believe that this is a very significant initiative. Only way we can get justice for children is to encourage them to talk about it and start from within your family. And then the school also has a responsibility, and I think public representatives, everybody has a responsibility. Every child deserves a childhood, and this is something that not many people talk about. Knowing that this is good, this is not good, this is something that I need to talk about, or who should I talk about to? At least these answers they should have. We have to give them the security and the confidence that if any kind of heinous crime is committed against them, they do not blame themselves for it. The more we talk about it, the greater the number, and the greater the number means the less stigma, less taboo around it, and then the easier it gets to find ways to heal from it. बहुत सारे बच्चों को जब बचाते हैं या ऐसे एक भी बच्चे को बचा लेते हैं तो उस वक्त महसूस होता है कि चलो कुछ आत्मसंतुष्टि जो बोलता है, तो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ जुड़ के आत्मसंतुष्टि वो चीज मिला। नींव अगर स्ट्रांग हो तो इमारत मजबूत बनी जाती है। बच्चों को आजादी होनी चाहिए टू बी चिल्ड्रन। Children should be free to be children, you know, and that's our job as grown-ups.
A look back there at the campaign. We're now joined by Rear Admiral R.S. Shrawat, Managing Director of the Kailash Satyarthi Children's Foundation. Admiral Shrawat, if you could see we just saw that small snapshot on the voices that joined us for the Justice for Every Child campaign last time around. So for our viewers and those who are tuned in right now, if you could tell them what was the impact the campaign had on the ground? Thank you, Gargi, for this question and for the support that we have got from the entire country through your channel. But before I come to the impact, I would just like to remind everyone that the war on child sexual abuse, CSA as we call it, was actually started by Kailash Satyarthi ji in 2017. In 2017, when he launched a Bharat Yatra from Kanyakumari to Delhi, covering the entire country. And in this yatra, nearly 8 lakh marchers marched with us. And the main theme why this yatra was undertaken was this topic of CSA, the child abuse. As a result of that yatra, because of our demands, several amendments to the POCSO Act were actually introduced. I would also like to say that many states incorporated stricter punishment under this crime even before the POCSO Act was amended by the central government. So we have been at it, Kailash has been at this war for a long time. And it is a war which is still going on. Coming to the impact of the last season, as Kailash ji just now said, that our foundation intervened and supported in nearly 15,000 cases. And when we say intervened, supported, it means that we provided legal support, we provided mental health support to the victims, we got them compensation. And on the other side, we also provided training to the law enforcement agency people. Out of the 15,000 cases, convictions were achieved in 678 cases, which is a very big number actually. If you see the average, the national average under these cases, 678 is a big number. And not only that, the compensation was awarded nearly totaling rupees 15 crores. The 15 crore has been disbursed to the victims of CSA. And in many cases, I would like to just say that whereas the conviction were there, but the compensation was not awarded. So we have gone back to courts and gone back to them and say that they have to be given compensation. That's how it happened. We have organized 11,000 counseling sessions to get the victims out of the trauma. जी बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं कि काफी काम हुआ है, ये जाहिर है कि बहुत सारे कन्विक्शंस भी हैं, बहुत काम हुआ है। और उसके लिए मैं फिर भी ये भी कहना चाहूंगा, हमने 14,000 लोगों को ट्रेन किया है, which are judicial officers, which are police people, which are members of child committee, welfare committees, and even support people require training. So I would like to say in a nutshell that the impact has been overwhelming. Absolutely, काफी impact और काफी असर हुआ है, जमीन पे बहुत कुछ काम हुआ है और बहुत कुछ हासिल किया गया है और इसकी गवाही देते हैं ये आंकड़े जो हमारे पास है। पिछले साल के जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन का जो असर है, लेकिन वो आंकड़ों से बढ़कर रहा। ये असर उन बच्चों के जरिए नजर आता है जो इसके पीड़ित हैं। नेहा एक ऐसी ही बच्ची है, जाहिर है इसका ये नाम हम आपको बदल के बता रहे हैं क्योंकि उसके असल नाम को हम यहाँ नहीं बताना चाहते। उसकी सुरक्षा के लिए उसकी पहचान को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। देखिए ये कहानी। A staggering 96.5% of rape offenders in India are known to their victims as per the 2021 report of the National Crime Records Bureau. That is a distressingly high number, which indicates that how close to home the danger is for India's children. Tragically, Poonam was not to know this that day in August 2021 when she left her 10-year-old daughter Neha with her relatives in Khunti in Jharkhand.
हम काम करके आए तो फिर वही दीदी बताया कि आज तो ऐसे हो गया, मैया के साथ में वैसे बोल रहे हैं। While her mother was out looking for work, the accused lured the victim to his home with sweets and chocolates and then raped her. He was someone known to the family, someone who Neha called Mama. After this heinous crime, Poonam received no help from her family members or other villagers, but she was determined to get justice for her daughter and she filed an FIR in the local police station. But she didn't know what to do after that. And that is when the support person from the Kailash Satyarthi Children's Foundation reached out to her to guide her through the legal process. The courts found the accused guilty and he was sentenced to life imprisonment. The foundation's support person had also filed for financial compensation and linked the family with sponsorship schemes that were vital for Neha's medical treatment. उनकी गवाही कोर्ट में हुई और उसके आधार पर उस व्यक्ति को 20 साल की सजा हो गई। सबसे पहले इंटरम कंपनसेशन के रूप में उनको 4 लाख रुपया मेडिकल के रूप में DLSA के द्वारा मुहैया कराया गया। बाकी पूर्ण कंपनसेशन बड़ा अच्छा अवसर हुआ फिर से कि इंटरम कंपनसेशन के अलावा पूरा कंपनसेशन दिया जाए, तो और भी 4 लाख रुपये जिला विधिक प्राधिकार के द्वारा उसको उपलब्ध करा दिया गया है। Neha already had a history of epilepsy which was only worsened by the mental and physical trauma of sexual abuse. Currently, she is critically ill. The road to recovery for Neha is long and painful, and justice and compensation together may help her recover her health. But for the shattered family and the traumatized child, what can never come back is the childhood that is lost forever. तो आपने देखा कि ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे कहानियां हैं, इनके पीछे चेहरे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैलाश सत्यार्थी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कैलाश जी, शुक्रिया आपके समय के लिए। और कैलाश जी, अपने जैसे देखा कि जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड जो है वो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा चाइल्ड प्रोटेक्शन कैंपेन है और इसमें आंकड़े भी हमने देखा जिसमें बहुत सारी कामयाबी हुई है, बहुत असर हुआ है। लेकिन आप हमें फिर भी ज़रूर बताएं कि लोगों की ज़िंदगियों पर इसका किस तरह से असर पड़ रहा है, क्योंकि हर आंकड़े के पीछे एक कहानी है, एक चेहरा है, तो वो आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। अभी परसों में लगभग 40 ऐसे बच्चों के साथ एक शिविर में मौजूद था जो हम लोग लगा रहे थे। सबसे छोटी बच्ची 5 साल की थी और ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 साल तक के बच्चे थे। वो सब सेक्सुअल अब्यूज़ के शिकार थे। वहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा आनंद हुआ जब मैंने देखा कि कई बच्चे जो पहले कभी बोलने में हिचक रहे थे, माँ बाप भी उनके परेशान थे कि बच्चे खुलकर अपनी बात नहीं कहते, वो नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशी मना रहे थे, एक दूसरे से खूब हिलमिल रहे थे। उनमें से किसी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था कि वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, उनकी क्या स्थिति है। लेकिन वहाँ एक बहुत प्यारी सी मासूम सी बच्ची जिसके साथ कभी यौन शोषण हुआ था, उसने अपना एक नाम बताया जो हिमालय की चोटी से मिलता जुलता नाम था। ये अलग अलग नाम हमारे लोगों ने दे रखे थे जी। तो मैंने उससे पूछा, बेटा तुमको इस नाम से क्या हासिल हो रहा है, क्या सोचती हो तुम, तुम्हारा कोई सपना है? बोली, अब मैं हिमालय से ऊपर, एवरेस्ट से ऊपर उड़ना चाहती हूँ। ये जो उड़ान है, मैं उन सब लोगों के लिए उस उड़ान की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारी माँओं ने हमसे बात की। अभी परसों भी 1-2 लोग मिले, लेकिन उससे पहले भी, जो खुद आत्महत्या करने की सोचने लगी थीं क्योंकि उनके ऊपर बहुत तरह के लांछन लगाए जा रहे थे। लेकिन जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन के जरिए जो उनको मदद मिली, उन माँओं ने जो आप लोगों को, सबको जो इसमें शामिल थे, साधुवाद दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, वो भी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। क्योंकि उनके बच्चे दोबारा से बचपन को जीने लगे हैं और बच्चों की खुशी देखकर वो माएँ नॉर्मल लाइफ जीने लगी। एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ और उसकी तरफ से भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा।
उसका प्यार आप तक पहुंचाऊंगा। एक मासूम सी बच्ची 13-14 साल की, आज वो एक स्कूल में है और बहुत खुशी से आगे बढ़ के टीचर बनना चाहती है। फिर कभी कहती है कि मैं थानेदार बनूंगी, लेकिन मैं उस थानेदार को सबक सिखाऊंगी जिस थानेदार ने मेरे साथ लगातार 24 घंटे तक बलात्कार किया। ललितपुर की ये बच्ची, एक बार कोई आदमी इसको बहला फुसला के ले गया और एक जगह पे छुपा दिया उसे। 3 और उसके दोस्त मिल गए और 4 लोगों ने उसका 3 दिन तक यौन शोषण किया, बलात्कार किया। किसी तरह जब उसको होश आया बच्ची को, तो ये लोग उठा के उसकी मौसी के घर में फेंक गए। मौसी तुरंत उसको ले गई थाने के अंदर। थानेदार ने थोड़ी देर बिठा के रखा, लेकिन देखा कि ये लड़की अच्छी है, देखने में सुंदर है, उसको अंदर ले जाके उसके साथ 24 घंटे बलात्कार किया। और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही थी। पूरा थाना, पूरे लोग एक साथ थे। किसी तरह बाहर बात आई, वहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के या और दूसरे लोगों के जरिए हम तक पता लगा। हमने तुरंत आदमी भेजा। वहाँ पुलिस ने उन सबको घर को, गांव को ऐसे घेर रखा था, छावनी बना रखी थी कि किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये मामला यहीं रफा दफा हो जाए। लेकिन मैंने खुद भी उस लड़की से और उसके पिता से बात की फ़ोन पे किसी तरह, और इसके बाद उस मामले को हमारे संगठन ने लिया और इस कैंपेन के तहत उसको आगे बढ़ाया। उस थानेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन इस मुद्दे को हम सुप्रीम कोर्ट में ले गए, जहां हमने ये बात उठाई कि हमारे ही मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया था कि हर थाने में एक पैरालीगल रखा जाए। वो पैरालीगल सीधे नालसा को रिपोर्ट करेगा, सालसा को रिपोर्ट करेगा, जो नेशनल अथॉरिटी है, स्टेट अथॉरिटी हैं लीगल सर्विसेज की। लेकिन ये नहीं हुआ देश में, तो सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को ले गए, इस बच्ची को साथ लेके। आप कल्पना कीजिए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला मान लिया गया होता देश में, तो हर थाने में एक पैरालीगल होता, तो शायद उसकी रिपोर्ट पहले ही दिन लिखी जाती, तो शायद उस मासूम के साथ इस तरह बलात्कार नहीं होता, तो शायद उसको इतनी यातनाएं न झेलनी पड़ती, और न जाने कितने बच्चों के साथ ये हो चुका। मैं आप सबको 15,000 ऐसे बच्चों और उनके हज़ारों माता पिताओं, भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये घटनाएं बहुत सारी हमारे साथ हुई हैं, लेकिन अभी भी आप देख लीजिए, अभी 2-4 दिन पहले की खबर है, बहुत शर्म आती है हमें। हाई कोर्ट, गुजरात के हाई कोर्ट ने एक जज ने एक मामले में लगभग 17 साल की, 16 साल से थोड़ी सी बड़ी लड़की थी, वो प्रेग्नेंट है, उसके परिवार वाले चाहते हैं कि अबॉर्शन हो जाए। उस अबॉर्शन का मामले को लोगों, स्थानीय अदालतों ने ढंग से नहीं सुना, वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट के जज ने कहा, अरे मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए, मनुस्मृति में तो ये लिखा है कि 17 साल के बच्चे दूसरे बच्चों को जन्म दे सकते हैं। हमको बहुत बहुत दुख होता है ऐसी बातें सुनकर। हमारा देश हमारे संविधान से, हमारे कानून से चलेगा या मनुस्मृति और शरीयत और इस तरह की चीज़ों से चलेगा? और मनुस्मृति में ये बात है भी नहीं, कहीं होगी तो वो शायद अपभ्रंश है, उसको बाद में जोड़ा गया है। मनुस्मृति में तो 25 साल की आयु तक सभी को पढ़ाने का, अनिवार्य शिक्षा का, समान शिक्षा का प्रावधान है। उसको क्यों नहीं पढ़ते हमारे जजेस लोग, अगर उनको इसकी बात करनी है तो? और हमारे कानून नेसेसरी भी नहीं था। दिस कमेंट वाज रियली नॉट रिक्वायर्ड टू टॉक अबाउट। इसका मतलब है कि हमारे न्यायाधीशों के दिल दिमाग में क्या भरा हुआ है, वो क्या सूचना देना चाहते हैं लोगों के पास तक। कम से कम 4-5 हाई कोर्ट्स ने, जजेस ने ये अभी कमेंट दिया पिछले कुछ महीनों के अंदर या साल भर के अंदर कि ज़्यादातर मामलों में तो एलोपमेंट हो जाता है या कंसेंसुअल सेक्स हो जाता है, सहमति से हो जाते हैं संबंध। लेकिन पता होना चाहिए कि एलोपमेंट के जो मामले हैं, हमने अध्ययन कराया तो 10 से लेके और 14% तक के मामले हैं, बाकी के मामले में ये नहीं होता। और जब ये मामले सामने आते हैं तो कई जजेस ये मानते हैं कि ये अपनी सहमति से सेक्स हुआ है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, और एक वातावरण सा बना दिया है कि बच्चे अपनी मर्जी से करते हैं। भाई गैर कानूनी चीज़ है, ये असंवैधानिक है, अनैतिक है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके मामले में जितनी मुस्तैदी से समाज के हर वर्ग को, न्यायालय को काम करना चाहिए, उसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है।
और वो संवेदनशीलता हमारे अंदर सबके अंदर होनी चाहिए। Kailash ji, when we started this campaign, our focus was child sexual abuse, and we've seen the stories and all the, you know, what all we did during the campaign, the various examples, how the foundation has helped so many children. Now the focus of the campaign has shifted to child marriage. If you could tell our viewers, you know, what is the reason behind this? I don't think that we are helping any child or any parent. We are trying to very humbly wipe out the scourge on the face of Mother India, which people are ignoring continuously. The people in the power are ignoring it continuously, and we are trying to wipe it out. And that's why we have been calling that, please come together, please come together. This is a stigma that has to be eradicated at every cost. तो बहुत तरह की चीज़ों में फ़ायदा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि now nobody can ignore it. Ordinary people across the country, when we organized this campaign during the whole year with NDTV, it has brought the issue to the table. घरों में लोग बात करने लगे इसकी। लड़कियां लड़के जो कभी बोलते नहीं थे कि उनके साथ ये हुआ है अत्याचार, वो अपने शिक्षकों को बताने लगे, वो अपने माँ बाप को बताने लगे। ये जो चुप्पी टूटी है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि in such cases silence perpetuates violence. We have to break the silence, and this campaign has been able to break the silence. और sexual abuse के मामले को अब छुपा के दबा के नहीं रखा जा सकता, लेकिन अभी बहुत लंबी लड़ाई की ज़रूरत है, मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है, कानूनों को लागू कराने की ज़रूरत है. So many things which are needed in the country. तो सबसे बड़ी बात यही है कि कम से कम बात हो रही है इसके ऊपर में. Absolutely, and let's take a look at the start of this campaign on the 16th of October. जब मैं 7-8 साल की थी और मेरी दीदी करीब 12 साल की थी, तो मेरी दीदी की शादी हो रही थी, तो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि इसकी भी साथ शादी कर देते हैं तो खर्चा कम हो जाएगा. लड़कियां जानवरों की तरह खरीदी बेची जा रही हैं, शादी की आड़ में, बाल विवाह की आड़ में. किसान कभी भी अपनी खाप जो कभी भी कच्ची फसल को नहीं काटेगा. आज देश के करोड़ों लोग हमारे साथ हैं और हमारी बेटियों के बहनों के साथ हैं. मुझे यकीन है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे. लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, बाल विवाह का अंत करेंगे. तो एक साथ चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया बनाना है. 16 अक्टूबर को इस कैंपेन की शुरुआत हुई, जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन. लेकिन ठीक उसी वक्त खबरें आने लगी असम से, जहां पर चाइल्ड मैरिज पर, बाल विवाह पर काफ़ी सख्ती हुई और ये हेडलाइंस बनने लगी. बड़ी संख्या में FIR हुए वहां पर. देखिए असम से ये रिपोर्ट. In February this year, the Assam government began a statewide crackdown on child marriage. It was the first ever stringent step by any state government in the country and led to a large number of FIRs within a very short time. As of February, more than 3,000 people allegedly linked with child marriages had been taken into custody across Assam. Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma has announced his intention to create a child marriage-free Assam and has a definite timeline in mind. Incidentally, Assam has one of the highest rates of child marriage in India. To achieve this goal, the state has also taken up various other measures, such as a helpline number to generate awareness among people, special lawyers to fight the cases of child marriage, and a budget of Rs 200 crore for stopping child marriages. Moreover, the government will work for the rehabilitation of the victims by providing scholarships, free education, and free rice schemes. Assam has the highest rates of maternal and infant mortality in India. This is one of the main reasons for the Assam government doubling down on legal action against men marrying underage girls, under the tough laws to protect children from sexual abuse and child marriages. The crackdown in Assam comes in the wake of the Justice for Every Child,
Child Marriage Free India campaign, a pan-India movement launched in October last year by the Kailash Satyarthi Children's Foundation, which has now become the world's largest grassroots campaign. All right, so a tough crackdown there in Assam on child marriages, and here's the Chief Minister's message for our campaign. I am happy that Kailash Satyarthi Children's Foundation is launching a campaign titled Justice for Every Child Session 2, Child Marriage Free India. From the core of my heart, I appreciate the initiative of the foundation in launching the campaign in ensuring the bright future of our children. In any society, children are the most important members. Their good upbringing determines the future of our nation. However, in many a time, we witness that our children are subjected to injustice of different sort. As a result, their growth is severely hampered. Child abuse is one such problem the nation is facing today. We need multi-pronged mechanism to find remedy to this problem. Rule of law, social protection, education, taking care of their physical and mental health can be immensely helpful in enabling our children's growth in a healthy atmosphere. Child marriage is one area of concern. Our government is very much committed to stop child marriage. In this connection, we have launched an uncompromising tirade to end child marriage by 2026. Our government has created a 200 crore rupee corpus to appoint special advocate against each child marriage case. Our priority is rehabilitation of the child marriage victims by providing scholarship, free education, and all other opportunities required for their natural growth. I convey my heartfelt congratulations to Kailash Satyarthi Children's Foundation for starting the campaign to end child marriage. I extend my moral support to the campaign and wish it a resounding success. Hope this campaign generates awareness in our society and enables our children to heal and continue their lives with dignity and freedom. Thank you. And there's a commitment in other states as well to tackle child marriage on a war footing. Child marriage has a devastating consequences on the children involved. It also triggers a cycle of ill health that is carried down through generations. Now, state commissions for protection of child rights are important stakeholders in this fight against child marriage. Take a look. 2030 तक ओडिशा बाल्य विवाह मुक्त हो जाएगा। ये हमारा कमीशन का और सरकार का दृढ़ संकल्प है और विश्वास भी है, क्योंकि हम दिन रात इसके लिए काम कर रहे हैं। उड़ीसा में 314 ब्लॉक है। सारे ब्लॉक में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर सीएमपीओ अपॉइंटमेंट किए गए हैं। मंदिर में पूजक हैं और मौला जी हैं और पादरी हैं, उनको हम सब सेंसिटाइज कर रहे हैं। और जो टेंट हाउस वाले हैं, डीजे वाले हैं और फूल वाले हैं, उन्हें भी तरह तरह से बार बार सेंसिटाइज कर रहे हैं। उनका भी हम लोग मीटिंग ले रहे हैं। वो सारे मंदिर में पोस्टर्स, बैनर ये सब लगा रहे हैं। उड़ीसा में 12,000 से अधिक विलेज अब तक चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर हो गई है और गंजाम गजपति जो डिस्ट्रिक्ट है वो दोनों डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर की गई है। चाइल्ड मैरिज इज अ सोशल ईवल. It is something that I've worked for and worked with for the last 6 years. And I've seen that child marriage is rampant because of various reasons. There is a law which says that children, women before 18 and men before 21 cannot marry. That is the law. But law is not enough. Once the child marriage happens, there are so many issues that get entwined that we cannot do much. What we have to do is we have to prevent it, and for that awareness is necessary. For that we have to first analyze that in various places there are various reasons behind child marriage. As a chairperson of the Child Right Commission,
I'm of the firm opinion that the entire Women and Child Department of every state, whether it be the VCPC, village level panchayat committees, whether it be the concept of Bal Sabha, should be strengthened. What is happening is that when a child is threatened with child marriage, not as an option, the only person that she talks to is her friend. That is why the concept of Bal Sabha, which is existing merely in GR, should be strengthened. The village level panchayat committee should be strengthened. जी बिल्कुल, रियर एडमिरल श्रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीबी, जैसा हमने देखा असम की रिपोर्ट में भी कि कहीं पर इंटरवेंशन से जो कार्रवाई है वो बहुत ज़रूरी है। आपने कहा था कि ऐसे में फौरन बाल विवाह के पीड़ितों को पुनर्निवास की भी ज़रूरत होती है, उनकी सुरक्षा की ज़रूरत होती है, साथ ही मुआवजा बहुत आवश्यक है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। तो जिस तरह कड़ाई से कानून असम में लागू किया गया, वैसे में यहाँ पे ये कितना ज़रूरी हो जाता है और ये क्यों ज़रूरी हो जाता है, उनका पुनर्निवास, उनकी सुरक्षा? अगर हम असम का उदाहरण देखें तो। Thank you, Nagma, for asking this. Before I go to this, I want to say that child marriage actually is not about marriage. It is a very serious issue and goes beyond marriage. It disempowers a child. It is about denial of her fundamental rights, right to education, right to personal liberty, etc., etc. And it is a criminal offense. So I want to say that as a society we have to come out of our slumber while we are sleeping. हम जब सो रहे हैं, lots of many thousand lives are getting spoiled, and therefore we really applaud the exemplary action taken by the Chief Minister of Assam, Shri Himanta Biswa Sarma ji. He has really gone out of way. He has set an example what to take action, what action as a deterrence and action for rehabilitation. It is music to my ears to hear him say that he has allocated 200 crore for rehabilitation of the victims of child marriage. You see, rehabilitation in this case is of many types. A child who is already married and wants to come out of the marriage which our law provides, then she requires a different kind of support. His family may require support. A child who is being forced by her own family to get married while she is still a child requires a different kind of support because she has nowhere to go. A child whose husband has been arrested, who was a major when the marriage took place and therefore he becomes a criminal, requires a different kind of support. So it is a very large landscape of support that is required in all these cases, different types of cases, and it is enormous. Therefore, I would like to appeal to the state chief minister of other states to follow the example which Assam has set up, take deterrent actions and take action for rehabilitation. So I would also like to say that if we have to accomplish the mission which our Honorable Prime Minister has given to us, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हमें उसको पूरा करना है और हमें बेटी पढ़ानी है तो बेटी अगर शादी ही हो जाएगी तो पढ़ेगी कब वो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ उन सभी माता पिताओं से जो अपने बेटियों का बाल विवाह करने चाह रहे हैं, कृपया करके अपनी बेटियों को, बच्चियों को बाल विवाह की आग में मत झोंकिए, मत झोंकिए। आपकी बेटियों के भी अरमान हैं, उनके भी सपने हैं, उनको सपने पूरा करने का जो अधिकार है, जो हक है, उस अधिकार को प्लीज मत छीनिए, मत छीनिए, मत छीनिए। मुझे जितना ही कहना है। पहले भी कहा गया कि बच्चों के लिए उनका बचपन, उनका अधिकार है, वो सबको मिलना चाहिए और हर बाल विवाह के मामले में कितना जरूरी है कि रिहैबिलिटेशन हो, सुरक्षा मिले। And it has to be a societal approach to prevent the child marriage from happening in the first place. So a change in mindset is required rather than later when you come down hard and file FIRs and put people in jail. सही बात है, ये पूरे समाज को सोचना होगा, सिर्फ कानून से नहीं होता। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। शुक्रिया आपका रियर एडमिरल। एक ब्रेक ले रहे हैं, हम लौटेंगे इस चर्चा में। हमको छू न सकोगे, खोटी नजरों वालों सुन लो, खान का दरिया बनकर अब हम निकल पड़े हैं। हमको छू न सकोगे, खोटी नजरों वालों सुन लो, खान का दरिया बनकर अब हम निकल पड़े हैं।
पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं। तो हमारे साथ दिया मिर्जा जुड़ी हुई हैं, कैलाश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दिया, आप और कैलाश जी दोनों ही यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एडवोकेट हैं, उसे बढ़ावा देते रहते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। आप अपनी इस पोजीशन और अपने तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से समझा सकती हैं या प्रेरित कर सकती हैं सोसाइटी, समाज के उन लोगों को कि बाल विवाह हमारी बच्चियों के लिए कितनी बड़ी समस्या है और किस तरह उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं? आई थिंक ये साफ नजर आ रहा है कि इंगेजमेंट की है। हम जितना कोशिश कर सकें कम्युनिटीज के साथ इंगेज करते रहें, अपना एंगेजमेंट बढ़ाते रहें, ताकि ये बात प्रचलित हो कि चाइल्ड मैरिज गैर कानूनी है, इट इज इलीगल। एंड नॉट जस्ट दैट, जब हम चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं। एक तो है सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स, जो एज ओल्ड प्रथाएं हैं, जो तरीके हैं लोगों के जीने के, या जो चॉइसेस लोग करते हैं जिसमें बहुत सारे कंपल्शंस होती हैं, जैसे कि पॉवर्टी, सोशल इनइक्विटी, और ये सब चीजों से जूझते हुए जो लोग हैं, उस बीच जो चाइल्ड मैरिज की जो समस्या है उसको पूरी तरह से मिटाना विल टेक एवरीबडीज एफर्ट। हम सबकी जिम्मेदारी लगेगी, हम सबका काम लगेगा। कम्युनिटीज के साथ एंगेज करना, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना कि ये गैर कानूनी है और कैसे और किस तरह ये लड़की की जिंदगी को बिल्कुल खराब कर देता है। एंड एज एसडीजी एडवोकेट्स, हमारा आई थिंक मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं पहले ये जो समस्या है इसको ठीक तरह से समझूं और फिर जो जानकारी लोगों तक है उनको पहुंचा पाऊं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी। कैलाश जी, हम सबकी जिम्मेदारी है और उस पर हम आगे भी बात करेंगे, पर बतौर एक आप जिस पोजीशन में हैं, किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करते ही हैं, पर कैसे कर सकते हैं? और जैसे दिया से जो मैंने पूछा वही आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ कि इस पूरी प्रथा को रोकने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, प्रेरित करने के लिए। देखिए, एक तो है कि हम बड़े प्रेम से समझा के लोगों से बात करें, जो कि हमारी प्राथमिकता है। बिल्कुल। उसमें सरकारी लोगों को, गैर सरकारी लोगों को, पंचायतों को, धर्मगुरुओं को और समाज के हर वर्ग को जोड़कर उस पर काम करें। शिक्षकों को खासकर, वो बड़े महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। नौजवानों को, तो उस माध्यम से लोगों में चेतना जगाई जाए। लेकिन वो ऐसी चीज़ नहीं कि एक बार आपने बोल दिया, भाषण कर दिया और बात खत्म हो गई। वो तो लगातार, यू हैव टू वर्क इट कंटिन्यूअसली, इट नीड्स सस्टेन्ड एफर्ट। तो एक बार में समाज के दिल दिमाग बदलते नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं मानते, सो ये पक्ष तो हुआ कि जैसे दिया जी आपने कहा कि ये एक सोशल ईविल की तरह है, एक सामाजिक प्रथा चली आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये अपराध भी है। तो ये चेतना भी जगाना जरूरी है कि भैया आप जेल जाओगे, जैसे हमारे कार्यकर्ता गांव में कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इसके बाद धमकी भी दे रहे हैं ज़रूरत पड़ने पर, शायद उससे भी काम चलता है। लेकिन और ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी शिकायतें दर्ज हों, खुद बच्चे बोलें या उनकी तरफ से कोई और बोले, कहीं से भी हमें सूचना मिले, तो इस सूचना के आधार पर हम केस रजिस्टर करा सकें, प्रोसिक्यूशन तक ले जा सकें। ये सब चीज़ें भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। तो कानूनी प्रक्रिया का भी सहारा लेना आवश्यक है। लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं भी हैं, राज्य सरकारों को भी अलग अलग योजनाएं हैं जो बाल विवाह को रोकने के लिए हैं। दिया जी, आप हमारे साथ एक कार्यक्रम में थी। कार्यक्रम क्या, वो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडवोकेट की जो मीटिंग है एडवोकेट्स की, उसमें मैं जिनेवा में था, इसमें न्यूयॉर्क में था, तो आप भी ऑनलाइन थी। तब मैंने भारत और दुनिया के कई देशों की उन योजनाओं के बारे में वहाँ बात की। यूएन सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे और कई राष्ट्राध्यक्ष वगैरह थे, कि जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैं, भारत में भी जो प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के, मैंने हवाला दिया था उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का, वेस्ट बंगाल की योजनाओं का, मध्य प्रदेश का और कई राज्यों का, कि वहाँ पर किस तरीके से बाल विवाह रोकने के प्रयास हो रहे हैं, झारखंड का। तो इन
योजनाओं का भी लोगों को पता होना चाहिए कि उनके लाभ उनको मिल सकते हैं। बच्चियों को वजीफा मिल सकता है जब तक वो शादी कराएंगे, इसके बाद उनकी शादी का खर्चा सरकारें उठाने के लिए तैयार हैं। तो हर तरीके से हमें ये चेतना जगाने का काम करना चाहिए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की बात भी जरूरी है कि जिस पुलिस थाने में, जिस इलाके में ये हो रहा है, अगर पुलिस के लोग या और दूसरे अधिकारी लोग इस पर तवज्जो नहीं देते तो उन पर कार्रवाई हो, उनको अकाउंटेबल ठहरा जाए, क्योंकि ये तो गैर कानूनी चीज है और उसमें जो भी शामिल होता है वो इसके लिए जिम्मेवार है। जी कैलाश जी, दिया भी आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हैं। दिया, आपके पास आप कुछ पूछना चाह रही थी कैलाश जी से। कैलाश जी, मैं आपसे ऐसा एक सवाल पूछूंगी जो सब पूछना चाहेंगे। आपका सपना है बाल विवाह मुक्त भारत, ये हम सबका सपना होना चाहिए। जब आप ऐसा फुटेज देखते हैं, ऐसी कहानियां देखते हैं, तो आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं? क्या है वो चीज जो आपको उम्मीद देता है? दिया बहन, आपकी मौजूदगी भी एक उम्मीद है। आप जैसे सेलिब्रिटी और दूसरे लोग जो सामाजिक रूप से इतने सचेत हैं और संवेदनशील हैं, करुणामय हैं, उनका नेतृत्व तो बहुत जरूरी है। और मैं बार बार कहता हूं कि आपके आसपास भी ऐसे आपके मित्र लोग होंगे जो फिल्म इंडस्ट्री के होंगे, खेल जगत के लोग भी हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं, जिनके चेहरे देखते हैं। मैं कहता हूँ धर्मगुरु भी, धर्मगुरु तो ऐसे हैं कि जो 24 में से शायद कई बार 28 घंटे भी टेलीविजन पे होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे धर्मगुरुओं को भी हम लोग शामिल करें और वो कहेंगे तो उनकी बात का ज़्यादा असर पड़ेगा। तो वो चेतना जगाने की बात है। लेकिन जिस तरीके से हमने जब कैंपेन लॉन्च किया, मैं सच कह रहा हूँ दिया जी, आपको मैंने वैसे भी एक बार कहा था कि 16 अक्टूबर की शाम जब लगभग 2 करोड़ बेटियों ने, बहनों ने, माओं ने, लोगों ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक डल लेक में मोमबत्ती जलाई और पोर्ट ब्लेयर में भी मोमबत्ती जला के खड़े हुए, मशाल जला के खड़ी हुए, राजस्थान में, हरियाणा में खाप पंचायतों की महिलाएं जब मशाल जला के खड़ी हुई, तो वो जो मशाल की रोशनी थी वो नए भारत की एक शुरुआत थी, एक अंधेरे को चीरती हुई किरण थी। भारत जब विश्व गुरु बनने के लिए कोशिश कर रहा है, हम लोगों के पास इतने अच्छे कानून हैं जो अमेरिका में नहीं है। अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में बाल विवाह के खिलाफ कानून नहीं है। दुनिया के अधिकांश देशों में इतना सख्त कानून नहीं है कि 18 साल तक की लड़की का और 21 साल तक के लड़के का विवाह नहीं हो सकता। हम वहां पर कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी चूंकि एसडीजी एडवोकेट हैं तो हम लोग मिलकर ये कोशिश करें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून बने और भारत के कानून और भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, कम से कम इन मामलों को, कानूनी व्यवस्थाएं हैं, वो हमें विश्वगुरु बनाने में आगे मदद करेंगे। हम सबसे बड़ी, सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं। हम इतने सबसे पुराने देश हैं दुनिया के और सबसे नवीनता लिए हुए देश भी हैं। हमारे नौजवान लोग सारी दुनिया में अपने आईटी का और इसका झंडा गाड़े हुए हैं और हम पुरानी मनुस्मृति की तरह बात नहीं कर रहा हूँ जो मैंने भी थोड़ी देर पहले की कि इस तरह की चीज़ों का हम हवाला दें, लेकिन हम उन चीज़ों का हवाला दे सकते हैं जहां हम लोग कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक है। वो हमें संदेश देता है। हम कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम, हम लोग सब साथ चलें, लेट अस वॉक टुगेदर, नो वन इज लेफ्ट आउट, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, वी हैव टू डू एवरी पॉसिबल एक्शन टू मेक श्योर दैट वी आर वॉकिंग टुगेदर अहेड, पीछे ना जाएं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये हमारे वेदों के ऋषि कहते रहे। लेकिन इन बातों को केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। हमारे धर्मगुरु इसको बोलें, साफ करके बोलें कि समाज का कोई वर्ग, कोई महिला, कोई बेटी पीछे ना रह जाए। और अगर एक भी बेटी के ऊपर बलात्कार होता है, एक भी बेटी का विवाह होता है, तो ये हमारी परंपरा, हमारी शास्त्र, हमारे धर्म, हमारी मर्यादाओं, हमारी महानता के खिलाफ है। और विश्वगुरु बनने के लिए इस बुराई को, इस कलंक को जब तक हम नहीं मिटाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये बात देश के हर कोने से उठना चाहिए, हर वर्ग से उठना चाहिए। Bilkul, if religious leaders, political leaders could all speak out so passionately about this, I think it would have a huge impact on society. And as we've been talking, society is what we need to change. All right. Well, thank you so much, Kailash ji, for being with us on the program. And of course, you'll be back later in the hour to join us. And thank you so much, Dia, for always joining these campaigns. Thank you, NDTV, for supporting this important campaign to make India child marriage free. I'm very grateful for the opportunity to be a part of this. And तहे दिल से कैलाश जी आपको शुक्रिया। आपका काम हम सबको इंस्पिरेशन देता है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
and especially when we want to draw light on this. Thank you so much, Kailash ji, for being with us. You'll be back with us later on the program. Thank you, Diya, always for being a part and lending support to all these campaigns. Thank you, Gargi ji and Nagma ji. And Diya ji, of child course. marriage free. I'm very grateful for the opportunity to be a part of this, and तहे दिल से कैलाश जी आपको शुक्रिया. आपका काम हम सबको इंस्पिरेशन देता है. धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. Right, thank you for that. Now, we have been talking about the POCSO Act on this campaign, and it's an act that deals with child sexual abuse. So how does it relate to child marriage? Because sexual activity with a minor is a crime under the POCSO Act. Now, this is an act that is being talked about even more these days because it's the central theme of a recent film called Sirf Ek Banda Kafi Hai. Now, the film is the story of a several-year-long legal battle between a Sessions Court lawyer and his struggle to bring justice for a little girl who had been abused by an influential person. Well, joining us now on the program, we have actor Manoj Bajpayee, who played the leading role in this film. Thank you so much, Manoj Bajpayee, for joining us. Now, you've just done this film, Sirf Ek Banda Kafi Hai. After doing this film, what is that one reality that children of abuse have to suffer that you think it's important for everyone to know about? Not one thing. There are many things. First thing, their complaint or their when they try to communicate with the people who are adults, they are always shrugged off. Nobody takes them seriously. Secondly, the judgment of the society. When a girl or even the male child, this is a first-hand experience I'm telling you. Nobody wants to believe them. And secondly, the child is always regarded as someone who is, वो बातें बना रहा है. वो लोग हमेशा सोचते हैं कि वो चीजों को इमेजिन कर रहा है या वो चीजें उतनी सीरियस नहीं है जितना कि वो उसको उस तरीके से ले रहा है. और जो in the case of a girl child, it's all the more brutal because they are judged, they are subject of questions, and they're subject of too much humiliation and embarrassment all the time. मेरा अपना निवेदन है, this is my own request, because I have worked with NGOs who are working with children when I was doing theatre. I have seen it very closely, and the abuse and all the assault that I have seen happen, all of those children who used to attend my workshops, their stories that when I used to hear from them, they were quite disturbing. And when I got this opportunity to work in this film, so everything that I have felt at that point of time, I used it in my performance. POCSO is a beautiful act. It's an act which was the necessity of the time, and I'm so happy now the POCSO Act is there. Right, absolutely. And we were just talking about how religious leaders, political leaders can make such a difference. And cinema is a powerful medium to carry messages to community. So, Manoj, if you could tell us, what messages do you hope that your film carries to people? Okay, since the time our film has been streaming on the OTT platform, we've been getting responses from the people. People get up from the sofas, they are clapping, they are whistling for the lawyer, they go through the pain, they actually feel the pain of that minor who's been assaulted in this case. So what film can do, that they can create awareness. Sirf Ek Banda Kafi Hai has been really creating awareness because it's part of a good engaging film, and it's also heartening to see that Sirf Ek Banda Kafi Hai has been really creating awareness about POCSO Act and also about the need of the parents to really monitor the movement of the child. This is exactly what film is also talking about. So there are many aspects of child abuse this film has been talking about, also the POCSO Act, and when people are loving the content, they are also some way getting aware about the seriousness of this issue.
All right, thank you so much, Manoj Bajpayee there talking to us. As we said, he plays a lawyer in this film, Sirf Ek Banda Kafi Hai, and that really is true. Each one of us can play a role in protecting the 3 crore girls of our country who are at risk of getting married before the legal age. But just how does one do that? Well, to take any kind of action, one first needs to understand what the law around child marriage actually says. What is illegal according to the law, and how can the law help, and where does one go to seek legal help and intervention? A marriage between 2 underage persons or 1 adult and 1 underage person is a child marriage. The law that addresses and defines child marriage as a cognizable offence is the Prohibition of Child Marriage Act 2006. Child marriage is a crime, not just because it violates the law, but also due to the fact that sexual activity with a minor is recognized as sexual assault under the Protection of Children from Sexual Offences Act or the POCSO Act. Child marriage is used to sexually abuse children under the garb of marriage. Can anyone prevent child marriage? Yes. Anyone who suspects that a child marriage is about to take place or has happened already can report the same to the appropriate authority. One can report a child marriage to the police, the local child marriage prohibition officer, the child welfare committee, the district magistrate, the court, by calling the child helpline number 1098, or then to NGOs, the Sarpanch, Anganwadi workers, Asha workers and so on. Child marriage is a cognizable and non-bailable offence. The punishment for being involved in child marriage is imprisonment up to 2 years or a fine up to 1 lakh rupees or both. The law covers an array of people who can be punished for conducting a child marriage, including any man above 18 who marries a girl below 18, any person conducting the marriage like a priest or religious cleric, parents or guardians for allowing it, neighbors and relatives for permitting or aiding it, any person involved in the organization, cooks, halwais, tent houses, band bajawalas, even a guest who has come only to eat the food is culpable simply by virtue of participation. Save India's children. Join the Pan India campaign for a child marriage free India. बिल्कुल, तो कानून के बारे में हम बात कर रहे हैं और अब कानून पे बात करने के लिए बाल विवाह पर जो कानून है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एच.एस. फूलका, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। स्वागत है आपका। और हमारे साथ जीपी सिंह जुड़ रहे हैं, जो डीजीपी हैं असम पुलिस के। फूलका जी, आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ पूछ के, जैसा हम इस रिपोर्ट में देख रहे हैं कि कानून में तो बाल विवाह के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और बहुत कुछ ऐसा है कि हम नहीं भी जानते हैं। तो विवाह कैसे रोका जा सकता है, कौन जिम्मेदार है, लेकिन कानून में ये नहीं साफ है, हम लोग नहीं जानते हैं कि जो पीड़ित हैं उनके क्या कानून हैं, खास करके उन बच्चियों के जिनकी शादियां हो गई, बाल विवाह हो गया, उस शादी के बाद भी उनके कानूनी अधिकार क्या हैं, इसके बारे में जानकारी दें। इसमें सबसे पहले तो हम एक ऐसी एग्जाम्पल लें कि कोई गांव में या कोई आपके मोहल्ले में कहीं पे एक बाल विवाह हो रहा है जी। तो उसमें क्या क्या उसको रोकने के लिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो अगर वो बच्चा खुद इंटरेस्टेड नहीं है तो बच्चा वो रिपोर्ट करे, अपने टीचर को रिपोर्ट करे, जहाँ जो चाइल्ड लाइन है चाइल्ड लाइन पे रिपोर्ट करे, जो 1098 चाइल्ड लाइन का नंबर है, जहाँ जो कैलाश सत्यार्थी जी की अपनी हेल्पलाइन है उसका नंबर मैं दे दूं 1-800-102-7222। अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, बच्चे को हम कई बार एक्सपेक्ट नहीं करते, मगर जो रिश्तेदार रिलेशंस हैं उनमें सभी ऐसे नहीं होते कि जो कहें जी लड़की है जी इसको घर से तोड़ दो, विदा कर दो, जैसे मल के फेंक दो। सबका एटीट्यूड ये नहीं होता। कुछ के रिलेशन ऐसे भी होते हैं जो कि सोचते हैं ये बात गलत हो रही है। वो जो रिलेशन है वो अपनी तरफ से स्टेप ले सकते हैं, वो यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं इनमें। और उसके रिपोर्ट करने के बाद क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, एसडीएम के पास ये पावर है कि वो ऑर्डर पास कर सकता है इंजंक्शन का, जैसे हम कि इंजंक्शन का ऑर्डर पास करे कि ये मैरिज नहीं होगी। उसके बाद वो मैरिज बिल्कुल नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, एक जैसे अभी बताया कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर है, उसका भी नंबर काफ़ी दिया हुआ, उसको रिपोर्ट करें। अब जो रिपोर्ट करने की बात है, कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट करें। एक तो मैंने जो हेल्पलाइन दे दी,
एक तो 1098 चाइल्ड लाइन है, वहाँ पे रिपोर्ट करो। दूसरा 1800-102-722, वहाँ पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको यहाँ पे भी नहीं करते तो आप पुलिस को रिपोर्ट कर दीजिए, पुलिस को रिपोर्ट करिए। जहाँ जो एरिया में जो STM का ऑफिस है, DM का ऑफिस है, वहाँ पे जाके रिपोर्ट करें। कोई नेबर भी कर सकता है और कोई भी जाके वहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है। दूसरी बात, अगर कोई जज कहता है कि मेरा नाम ना भी चाहे, कोई रिश्तेदार है कहता है ये गलत बात है, मगर अगर पता चल गया लड़की के पेरेंट्स को एनोनिमस रहना चाहते हैं, हाँ, तो वो ये जो कैलाश त्यार्थी जी की चाइल्ड हेल्पलाइन है ना, वहाँ पे रिपोर्ट करें, पूरा एनोनिमस रखा जाएगा। ये 1800-102-7222, वहाँ पे उनका नाम एनोनिमस रखा जाएगा। अपनी टीम, इनकी जो NGO का नेटवर्क है वो जाएगा, जाके वहाँ पे स्टेप लेगा, वो वाली बात। तीसरी बात, जो अगर वो हो गया, आगे वाली बात, लोगों के लिए, जो मोहल्ले के लोग हैं, रिश्तेदारों के लिए ये चेतावनी कि आप ये ना सोचो कि जो माँ बाप है वही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अभी आपने जो वीडियो देखी उसमें कहा है कि जो बैंड बाजे वाले, जो वहां पे जहाँ जो पंडित है, जहाँ मुल्ला है, जहाँ वो जो शादी करवा रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और जितने भी रिश्तेदार वहां पे पहुंच रहे हैं वो सभी जिम्मेवार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। 1 लाख रुपए का फाइन है। मैंने पहले कई बार ये बात कही है कि वहां शादी की जलेबियां खाने ना पहुंच जाना। बाल विवाह की जलेबियां आपको 1 लाख रुपए में एक जलेबी पड़ेगी। बिल्कुल। हाँ। Now, we've been talking about child marriage and why it's a social evil, but it's also connected to other social evils. There's a host of issues connected to child marriage, like trafficking or child labor, child slavery as well. So a number of crimes are being perpetrated against children under the guise of child marriage. Listen in to this horrifying account. मुझे यहाँ से ले चलो अम्मी, मुझे यहाँ से ले चलो अम्मी। मतलब कि यहाँ से बाजार गए, बाजार से मतलब कि उसके साथ में एक औरत पीछे लग गई और रोल में खिला दिए, सब अपने साथ में लेके चले, किडनैप करके वहाँ हरियाणा में जाकर। At an age when she should be dreaming of a bright future, Rubina was kidnapped and sold by a trafficker. The trafficker, Pooja Didi, drugged Rubina in Bihar and sold her to a man in Haryana for marriage for just $2,200. उसके बाद में हम लोग सब जगह तो खोजे, कहीं ना पता चला। उसके बाद में हम लोग थाना केस किए। थाना से कोई हम लोग को सहारा नहीं मिला। फिर 55 बचाए आंदोलन से हमने सहारा लिया। Rubina was raped every day until one day she found the opportunity to call her parents for help. हेलो मम्मी, हाँ बेटा, बेटा। Acting on the complaint, BBA, founded by Nobel Peace Laureate Kailash Satyarthi, swung into action and conducted an undercover operation along with the police to find the whereabouts of the girl. The location of the phone number used by the girl to call her parents was also traced, and a raid was conducted at 2:32 a.m. With the BBA's tireless efforts, Rubina was rescued on the 22nd of May. All right, such a disturbing account there. So, Mr. Phulkar, just explain to us, so as we've shown there's a link between child marriage and child abuse, and how does the law deal with this? You see, this is a clear case of trafficking, child trafficking, and this is also a case of POCSO. Now, this is a very, very serious offence. Now, this is the offence which is much more serious than child marriage. Now, here the child which is trafficked and sold for marriage. So that's a very serious offence. ऐसे केसों में तो कम से कम उम्र कैद है, और जो इस केस में तो डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, बल्कि ये तो उस तरह के केस है। मगर अब ये एक केस देखिए, ये जो जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, ये देखिए, बच्ची ने अपने माँ को फ़ोन करके सिर्फ ये कहा, माँ मुझे बचाइए, इतनी बात कही। तो उन्होंने, अब जब कैलाश त्यार्थी जी का नंबर सब जगह पे लोगों के पास आए, तो ये हेल्पलाइन पे उनके पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया। जब हेल्पलाइन पे कांटेक्ट किया, वहाँ से वो उसको कॉल ट्रेस करके
वो पुलिस ने हेल्प की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने भी हेल्प की, उनका क्लास CRC फाउंडेशन का टाई अप है, तो पुलिस की हेल्प से जाके उन्होंने ट्रेस किया कि जो कॉल कहाँ से आई है, तो वहां से ट्रेस करके बच्ची को बचाया। बल्कि बात यह है कि अगर वो वहां वाली बात, अगर ये बच्ची तो ने तो किया, अगर बच्ची नहीं भी कर सकती तो आसपास नेबर्स हैं जिनको पता होता है कि ये हो रहा है। अगर वो आम तौर पे किसी से बातें करती, बच्ची बोलती है मुझे तो उठा लाए, तो नेबर भी इस तरह से कहीं पे फोन कर दे, कंप्लेंट करते, तो बच्चियों को बचाया जा सकता है। मगर आपको, और ये बात उनको कई बार कहते हैं जी हमारी लड़ाई हो जाएगी, अरे एक बच्ची के जिंदगी का सवाल है। और दूसरी बात, जहां लड़ाई का भी मतलब नहीं, वहां पे जाके आप उनका नाम भी नहीं आएगा। ये टीम ऐसे काम करती है, इश्तियार जी की टीम, जाके उनका तो नाम भी नहीं आता, वो इंडिपेंडेंटली जाके वर्क करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, सारी सोसाइटी में सब लोग अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। अरे वो बच्ची जिसके साथ ये हो रहा है, करना बहुत जरूरी है। दिस अवेयरनेस दैट you can complain anonymously and the teams will come in and help out and rescue the child. बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो पड़ोसी हैं वो तो कम से कम इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलका साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद बहुत आपका तमाम जानकारी कानूनी देने के लिए। और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं GP सिंह, जो DGP हैं असम पुलिस के। GP सिंह साहब, असम वो राज्य था, बल्कि पहला वो राज्य था जिसने कि बाल विवाह के खिलाफ बहुत कार्रवाई की और बड़ी सख्ती की। हमने देखा बहुत हैवी क्रैकडाउन हुआ वहाँ पर, और उसमें बहुत सारे FIR भी किए गए हैं, बहुत सारे अरेस्ट हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि जो इतना टफ क्रैकडाउन था, FIR और तमाम चीज़ें हुई, उसमें गिरफ्तारी के बाद अब आगे क्या, कैसे आगे बढ़ेंगे? Last year in the month of November, Honorable Chief Minister Assam had conveyed to us that it has been made known to him that there's a large scale practice of child marriages going on in various parts of the state. So after that he asked us to verify this information. We had verified this information, and from November till about end of January we had verified, and after verification we found that the information is genuine, correct, and there is large scale practice of child marriage in different parts of the state. After that, we had registered about 4,600 cases across the state, and on the basis of the FIRs that we had registered, we started investigation. About 90% of the cases have already been submitted in charge sheets, and a large number of people, totaling about 3,400, were arrested, and subsequently charge sheets have been filed against them. What we intend to do is that we have to take them to logical conclusion, that is, go through the entire process of trial, and subsequent to trial, we hope that in most of the cases we would get convictions. Basically, the idea of this entire exercise was not only to deal some kind of a blow and stop this practice of child marriage, but also to ensure that various parameters of health of women and infants that were suffering basically IMR and MMR, they improve in the state, because they were pulling down the SDG indices of the state. So that is the exercise that we have taken. And as next step, we now want to go in for review of the impact of this exercise. And in case we find that similar instances are still there, then we will go in for second round of action against such people who are still indulging in चाइल्ड मैरिज। मुझे ये लगता है कि यदि हम चाइल्ड मैरिज के ऊपर ये सस्टेन्ड एक्शन कुछ सालों तक चलाएंगे, तो चाइल्ड मैरिज की जो ये बाल विवाह की जो प्रथा है, ये आसाम में लगभग समाप्त हम लोग कर पाएंगे। All right, so Mr. GP Singh, you've had this tough crackdown in Assam and thousands of FIRs being filed, and there's been a lot of talk around the way you crack down on child marriage. But how can we address the societal compulsions that force children into marriage? The most important thing is that we will have to educate the elders in the family, in the society, that the girl should not be looked as a burden. I am myself a father of 2 daughters, and I think that there cannot be a greater gift of God than being parents to daughters. So this is something that has to be, that the society has to be made aware of. Secondly, we have to see that the education, etc., of the girls during the phase of growth
is made easily accessible and either free or less costly, so that the process of education does not become a burden on such parents who think that it is better to get them married instead of getting them educated. Next is that we have to think of giving such girls who are getting education some kind of a post-education placement, so that not only they get educated and earn for themselves, but also that they earn for the family, so that people do not see these daughters as burden, rather they see that these are the people who will support the family in the longer run. Additionally, we have to provide better health facilities so that girls are able to really grow properly as a human being during these formative years. I think while the government has its own role to play, it is also important that the NGOs, social sector, then various agencies of groups like we have our own national groups which are working against the Satyarthi Foundation itself is one of the bigger names in this. So every stakeholder has to come together so that we can prevent this scourge of child marriage. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मिस्टर जीपी सिंह फॉर जॉइनिंग अस। जैसा आपने बताया कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये मानसिकता बदले, जहां लड़कियां जो है वो बोझ न मानी जाएं और लड़कियों को सशक्त किया जाए। तो ज़मीन पर ये सब किस तरह से काम हो रहा है, जब हम बीच बचाव करते हैं, इंटरवेंशंस करते हैं बाल विवाह को रोकने के लिए, अगर कुछ कामयाब हो पाती हैं, उस जागरूकता के लिए क्या काम हो रहा है और चुनौतियाँ क्या हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं रविकांत जी, जो इंडिया हेड हैं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविकांत जी। और ये जो पूरा कैंपेन है जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, उस कैंपेन को लॉन्च तो किया गया, उसमें काम हो रहा है, लेकिन इसमें जो ज़मीन पे किस तरह का काम हुआ है और कैसे कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से, इसके बारे में हमें जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले तो जब हम लोगों ने राज्य सरकारों और बाल आयोगों के साथ मिल करके हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स जगह जगह पे नियुक्त हों और वो प्रोएक्टिव हों। हम लोग जिले लेवल पे ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज़म्स का, प्रशासन का, लॉ इन्फोर्समेंट का, ताकि वो लोग सब मिल करके इस पर काम कर सकें और कम्युनिटी के लोग जब उनके पास जाएं तो वो रिस्पॉन्ड कर सकें। और हम लोगों ने एक और भी चीज़ किया कि प्रशासन और कम्युनिटी को जोड़ने का जो प्रयास है, क्योंकि ये बातें कम्युनिटी से आती हैं और कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करके प्रशासन के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि इन चीज़ों पे जो खबर आए इस पे तुरंत एक्शन हो। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि कैलाश जी ने जब 16 अक्टूबर की जो कैंपेन की थी जिसमें करोड़ों महिलाएं और बच्चे बाहर आए थे, लड़कियां बाहर आई थीं, आज वो लोग अपने अपने गांव में जा कर के अलख जगा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और वो लोग आज आईज एंड ईयर्स हो गए हैं इस लड़ाई में। और बहुत सारे ऐसे खबर आ रहे हैं चाइल्ड मैरिजेस के जिसमें प्रिवेंशन हो रहा है, कई जगहों पर FIR हो रही हैं। और मैं एक और भी आपको एग्जांपल दूंगा कि उदयपुर ऐसे जगह पे राजस्थान में पहली बार इंजंक्शंस का यूज़ किया जा रहा है जिसमें जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट होती, कोर्ट की ऑर्डर होती है और इंजंक्शन का इस्तेमाल जिला प्रशासन ने किया है इसको रोकने में। इससे लोगों में एक भय आएगा कि अगर आप बाल विवाह करते हैं तो इसमें कानून आपके ऊपर एक्शन लेगा। जी, तो रविकांत जी, जो आपके NGO पार्टनर्स हैं, जो फाउंडेशन है, वो अपने NGO पार्टनर्स के साथ किस तरह का काम कर रहा है, क्योंकि आपके बहुत सारे पार्टनर्स हैं अलग अलग हिस्से में भारत के, तो कैसे इंटरवेंशंस हैं जिसमें आप लोग इस समय इन्वॉल्व हैं? देखिए, हम लोगों ने इसके बाद से जो चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन जो लॉन्च हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने पूरे देश भर में 17 राज्यों में 160 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल कर के काम कर रहे हैं। 50,000 गाँव की टारगेट है। हम लोग जगह जगह वहाँ पर कम्युनिटी सोशल वर्कर्स को अपॉइंट किया गया है गांव-गांव में, जिससे कि स्कूल ड्रॉप आउट्स की मॉनिटरिंग हो सके, क्योंकि जब भी बाल विवाह लड़कियों का होता है तो उसमें लड़कियां पहली चीज़ जो इंडिकेटर होता है वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं जी। तो स्कूल ड्रॉप आउट का मॉनिटरिंग करना, उसमें लड़कियों को, एडोलेसेंट गर्ल्स को, उनको सेल्फ डिफेंस पे ट्रेनिंग देना, साथ में लोगों के साथ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी जो कुरीति जिसकी बहुत सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, उसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उस कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट में लोगों से प्लेज कराना
मोर देन 5 करोड़ प्लेजेस हम लोग ले रहे हैं, जगह जगह ले रहे हैं, क्योंकि एक बार हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जब लोग एक बार शपथ ले लेते हैं तो उसके बाद जरूर कहीं ना कहीं कोई एक्शन होता है। तो वो शपथ दिलवाना लोगों को बाल विवाह पर, और जगह जगह पर एक मैसिव कैंपेन्स हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके जगह जगह मिल करके इस पर हम लोग ये कार्रवाई चल रही है। पर 160 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल करके इंडिया के बिगेस्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिससे कि हम लोग जगह जगह पे प्रशासन, कम्युनिटी, लॉ इन्फोर्समेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सब मिल करके इस पे काम कर सकेंगे। और जो महिलाएं और बच्चे गांव में हैं उनको सरकारी स्कीम्स के साथ जोड़ना, क्योंकि ये पॉवर्टी की भी इशू है। तो हम लोग ये चीजें कर रहे हैं। जो हमारे कम्युनिटी सोशल वर्कर्स गांव में जा रहे हैं वो इसकी भी मूल्यांकन करेंगे कि कैसे उनको कम्युनिटी जो सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं, सरकार की जो पॉवर्टी की स्कीम्स हैं, लड़कियों के लिए स्कीम्स हैं, वो सब स्कीम्स कैसे हम उन बहन बेटियों के पास पहुंचा सकें ताकि उनको एम्पावरमेंट हो सके, सशक्त किया जाए और उनको फायदा पहुंचेगा। तो जाहिर है कि वो बच्चियों की पहली शादी, जल्दी शादी करने से हिचकेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद आप। Thank you so much for joining us, and clearly that is the need of the hour, to create more awareness, and campaigns like this will create awareness, but a whole community and society action to really stop this evil of child marriage. We'll slip into a short break and be back with more. हम तुम हमको छू न सकोगे, खोटी नजरों वालों सुन लो, आग का दरिया बनकर अब हम निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े। तो हम लगातार बात कर रहे हैं बाल विवाह की, लेकिन कोई भी शादी अगर होती है तो फिर सोचिए कि उसमें कितने लोग जुड़े होते हैं। बैंड बाजा होता है, हलवाई, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे वो पंडित हो, मेहमान होते हैं, माँ बाप है, परिवार है, मेहंदी वाले, फूल वाले, तमाम। तो कानूनन इन सब की जिम्मेदारी बनती है, ये सब दोषी हैं अगर बाल विवाह में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि पूरा समाज जुड़ा है कि किसी एक बच्ची के बाल विवाह करवाने में। तो इसलिए पूरे समाज को जरूरत है कि वो ये शपथ लें कि वो बाल विवाह रोकेंगे। और हम ये लक्ष्य कैसे हासिल करें? कैलाश जी हमारे साथ वापस स्टूडियो में जुड़ गए हैं और आप हमें बताएंगे इन तमाम चीजों के बारे में कि किस तरह जो समाज है वो इसमें इंटरवीन कर सकता है, दखल दे सकता है। लेकिन उससे पहले हमने ये भी चर्चा की थी कि कैसे हमारे जो धार्मिक गुरु हैं वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो पहले सुनते हैं ऐसी ही एक शपथ। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। बहुत लंबे समय से हमारे समाज में ये कुरीति पूरी तरह से अपना जाल फैलाए हुई है। सारे देश के जो धर्माचार्य हैं वो किसी भी मत और संप्रदाय के हों, इस समय उन सब को भी आगे आने की जरूरत है। सब मिल करके इस बुराई के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो जिन जिन मत संप्रदायों के समर्थक लोग हैं और वे बाल विवाह में संलिप्त हैं, बाल विवाह करते हैं, कई लोग बाल विवाह पैसे के लालच में भी करते हैं, कई लोग पैसे के अधिक खर्च से बचने के लिए भी कर देते हैं, और अनेक कारण इस बाल विवाह के रहते हैं। किसी भी रूप में बाल विवाह सही नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये बच्चों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, विशेष रूप से लड़कियों के विकास में। इसलिए इस बाल विवाह के विरुद्ध मजबूती से आवाज उठाने की जरूरत है। आर्य समाज प्रारंभ से ही इस कुरीति के विरुद्ध अपना अभियान चलाता आया है और अब भविष्य में भी हम और अधिक मजबूती के साथ बाल विवाह की इस बुराई के खिलाफ अपने संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करेंगे कि वे जहां भी रहते हैं, गांव में, शहर में, गली में, मोहल्ले में, हर जगह यदि उनके सामने कोई बाल विवाह की बात आती है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाएं, जागरूक करें। ये बहुत आवश्यक है। All right, so we just heard there from a faith leader, and it's very important to hear from them. And Kailash ji, the priests, the mullahs, they're also culpable under the law if they conduct a child marriage. And as Nagma was mentioning earlier, there's so many people involved in the marriage if it takes place, from the caterers to the tent walas to the mehendi walas, etc., etc. And so what can either a priest do if he's asked to officiate such a marriage, and what should people do if they know they're invited to a child marriage? It is not only that they are culpable under the law, but it is also their moral obligation towards their society. All these dharam gurus, mullahs and pandits and all,
they do have their own daughters. How are they going to push their own daughters into that endless tunnel of slavery, trafficking, perpetual rape? Child marriage is a license to perpetual rape of those girls. 10, 12, 14 साल की लड़कियों को इस तरह से यौन शोषण किया जाता है और लोगों को लाइसेंस मिल जाता है। वो सोचें कि अगर चंद पैसों के लिए वो उस विवाह को करा रहे हैं, मुल्ला हों, पादरी हों, पंडित हों, या बैंड बाजे वाले हों, या और दूसरे लोग हों, तो सबसे पहले उनको ये सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो नहीं सोचते तो मुझे यकीन है कि हर गांव में 2-4 हमारी बेटियां ऐसी हैं। और जिस वक्त हमने 16 अक्टूबर को पिछले साल ये कैंपेन लॉन्च किया, आई केम अक्रॉस many such girls and women. An elderly Dadi from Khap Panchayat, she stood against the Khap Panchayat and she said that I am not going to tolerate it in Haryana. उसने कहा हम नहीं करने देंगे, मेरे साथ जो हुआ मेरी बहू के साथ हो गया, मेरी बेटी के साथ हो गया, अब मेरी पोती के साथ मैं नहीं करूंगी। खाप पंचायत के खिलाफ उठ के खड़ी हो गई। हम ऐसे 5 करोड़ लोगों को इस कैंपेन के जरिए जोड़ रहे हैं और भले लोग हैं वो। जब हमने ये लॉन्च किया तो लगभग 2 करोड़ लोग कैसे जुड़ गए, 76,000 से ज्यादा महिलाएं आगे आ गई, बिकॉज दे वर सफरिंग, दे वर फीलिंग सफोकेशन, दे वांटेड सम आउटलेट, they were looking for some platform to voice out their miseries and their exploitation. सब तैयार हैं, भारत की बेटियां बहनें, उनको हम थोड़ी सी जगह दें। वो छीन लेंगी अपना अधिकार, वो आज़ादी से जीना चाहती हैं, वो गरिमा से जीना चाहती हैं, वो पढ़ाई लिखाई जारी करना चाहती हैं, वो समाज में अपने आप को साबित करना चाहती हैं। और पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में आगे आएँ, और मुझे यकीन है कि आगे आ रहे हैं और उसकी शिकायत हमको करनी चाहिए, रोकने की कोशिश करें। गांव में ऐसा नहीं होता कि पूरे गांव में सभी लोग अंधे हैं, सभी लोग बहरे हैं, लोगों को पता है। थोड़ी सी हिम्मत दिलाने की बात है, और हमारा ये कैंपेन वो हिम्मत दिलाने का काम कर रहा है। उनके अंदर वो चीज है, वो ईंधन है, हम जरा सा स्पार्क देना चाहते हैं और वो होके रहेगा। बिल्कुल। तो वो कर सकते हैं हम लोग, विवाह का बहिष्कार करें। हाँ। कई जगह लोग अपना, मुझे एक राजनेता मिली एक बार एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा कि कैंपेन तो आपको बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी बिरादरी वाले बुरा मान जाएंगे अगर मैं उसमें शामिल नहीं होती तो हमने कहा जो बात ऑफ द रिकॉर्ड आप कह रही हो हमसे, बोले हमें वोट नहीं देंगे, हमारे रिश्तेदार लोग हमको छोड़ देंगे। तो हमने कहा हिम्मत कीजिए। अगर आप जैसे राजनेता इतना सरेंडर कर देंगे वोटों के लिए, तो अरे वोट बड़े हैं या हमारी बेटियां बड़ी हैं, उनकी जिंदगियां बड़ी हैं, उनके साथ यौन शोषण जो हो रहा है उससे मुक्ति में जरूरी है। बाल विवाह यौन शोषण है, इसको हमें समझना पड़ेगा और इसके लिए हमें दूर करने की हर कोशिश करनी पड़ेगी। राजनेताओं से भी अपील करता हूं, उनकी आवाज में दम है, उनके पीछे लाखों लोग हैं। अरे भाई, कुर्सी की खातिर किसी भी पार्टी के लोग हों, अगर आप इस तरह की चीजों को जाने अनजाने में सपोर्ट करते हैं तो आप संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ हैं तो हैं ही, लेकिन भारत के खिलाफ हैं। बिल्कुल। कैलाश जी, एक जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि ये समाज के बारे में, कम्युनिटी के बारे में है, तो चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन जो है वो यही एक अवेयरनेस लोगों में जगाने के लिए है कि ये जो अपराध है वो 4 लड़कियों में से, हर 4 लड़की में से एक को अफेक्ट करता है जो 20 से 24 साल के बीच भी हैं। एक जो अभी मौजूदा दर है चाइल्ड मैरिज की वो 23.3% है, इसे 10% तक कम से कम लाना है 2025 तक। और ये तभी होगा अगर हर एक शख्स जो है इस तरह की शादियों में जो शामिल होते हैं वो इसके बजाय इस शादी को रोकने का काम करें और एक शपथ लें कि वो बाल विवाह को रोकेंगे। मेरा नाम अदील है। मेरा नाम मोनू है। हम शादियों के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं पगड़ियाँ सिलता हूँ। हम लोग बाल विवाह का विरोध करते हैं। मैं बाल विवाह के सख्त खिलाफ हूँ। मेरा नाम अमन है। मेरा मेहंदी का काम है। मेरा पगड़ियों का काम है। बाल विवाह के लिए बच्चों का पगड़ी नहीं बेचते हैं। हमें पता चल जाए कि बाल विवाह है तो उसमें हम मेहंदी नहीं लगा सकते। मेरा नाम उमेश कुमार। मेरा नाम धीरज है। मैं प्रयास संस्था में काम करता हूँ एज ए सोशल वर्कर के पोस्ट पर। हमने जो योजना बनाई है वो ये है कि हम उस गांव में जाकर सामुदायिक स्तर पे जागरूकता फैलाएंगे। PRI मेंबर को अगर हम सेंसिटाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनके माता पिता को ज़्यादा बताएं
बच्चों के राइट्स के बारे में बच्चों को बताया जाए। इससे होने वाले दुष्परिणाम के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे। इसको कानूनी रूप से हम लोग जिला स्तर तक डीएम के लेवल पर पुलिस बल के थ्रू और सामाजिक स्तर पर इसका रोकथाम को बहुत सारे कार्यक्रम चला के हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। सामुदायिक बुराई है, इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो कैलाश जी, एक सवाल आपसे ये कि जैसे अगर मुझे कोई कार्ड ऐसा मिलता है या न्योता मिलता है कि बाल विवाह में शामिल होने के लिए, या कोई नेबरहुड में पड़ोस में पता चलता है, मैं क्या कर सकती हूँ ऐसे में? अगर आप एक सच्ची भारतीय हैं तो सबसे पहले उस कार्ड को लोकल पुलिस तक पहुंचा दीजिए कि ये कार्ड आया है। अपना नाम मत रखिए, भले ही अपने आप को अगर आप सुरक्षित रखना चाहती हैं तो हिम्मत तो आपकी तब होगी। इस देश, ये देश तो वीरांगनाओं का देश है। हिम्मत करके आपको पुलिस में जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, चाहे कितना ही सगा क्यों ना हो वो आदमी, क्योंकि वो गैर कानूनी है, अनैतिक है। ये किया जा सकता है। आप 100 नंबर पे फ़ोन कर सकती हैं। अगर नहीं जाना चाहें वहाँ तो कार्ड लेके, कार्ड की फ़ोटोकॉपी करके भेज सकती हैं। आप अगर बच्चे की विवाह हो रहा है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जा सकती हैं। हमारे कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन में और दूसरे हमारे संगठन हैं, उनमें जा सकते हैं। तो आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, अगर आप चुप रहते हैं तो भारत कभी नया भारत नहीं बनेगा। अगर आप बुराई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते तो हमारा जो महान लोकतंत्र है उसकी गरिमा की पुनर्स्थापना नहीं हो सकती। हम भारत को विश्वगुरु बनाने की कितनी बातें करते रहें, लेकिन ये समाज पिछड़ता जाएगा। आवाज़ उठाइए इस बुराई के खिलाफ। अगर आपको कहीं से भी सूचना मिलती है, न केवल बायकॉट करिए बल्कि शिकायत कीजिए। और ये बहुत साफ संदेश है कि सब लोगों को इसमें शामिल होना पड़ेगा, चाहे वो कहीं से भी हो और किसी भी तरह बाल विवाह से जुड़े हों। ये हम सब की जिम्मेदारी है, साझा जिम्मेदारी है, क्योंकि आखिर में ये हम तमाम लोग हैं, हमारा समाज है जो इसमें शामिल होगा। बिल्कुल। और तभी उन लाखों बच्चों को बाल विवाह के शाप से हम मुक्त कर पाएंगे, जिनकी उम्र है कि वो पढ़ें, वो खेलें और उनका बचपन उन्हें मिले। तो कैलाश जी, आज का जो ये पूरा शो था, ये इसकी शुरुआत आपने ही की। हम चाहेंगे कि आप ही इसका समापन भी करें। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आइए हम सब लोग मिलकर एक प्रतिज्ञा करें कि भारत में एक भी बाल विवाह नहीं होने देंगे। भारत माता के माथे से ये कलंक मिटाकर ही हम रहेंगे और हम एक नए महान भारत का निर्माण करेंगे, बाल विवाह का अंत करेंगे। तो आइए, किसका इंतजार कर रहे हैं आप? आज ये वक्त है, आप वो लोग हैं, यही जगह है भारत जहां से हम दुनिया को ये संदेश देंगे कि हमने बाल विवाह मुक्त भारत बनाया है। बाल विवाह मुक्त भारत के लिए मैं आपका फिर से आह्वान करता हूं। मैं ये शपथ लेती हूँ कि मैं जब तक 18 वर्ष की ना हो जाऊँ तब तक विवाह नहीं करूँगी, ना ही किसी 18 वर्ष से कम की लड़की या 21 वर्ष से कम के लड़के का विवाह होने दूंगी। लुटने को तैयार नहीं हम